یوٹیلیٹی اسٹورز میں مالی باضابطگیوں کے نظام کو شفاف بنانے کا فیصلہ، متعلقہ ادارے رمضان کے لیے مزید مؤثر اور سود مند پیکج تیار کریں۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت رمضان پیکج کی تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن پر جائزہ اجلاس۔ شہباز شریف نے کہا کہ رمضان پیکج کی امدادی رقم ڈیجیٹل والیٹس کے ذریعے فراہم کی جائیں۔ ڈیجیٹل والیٹ سے کیش لیس معیشت کو فروغ اور عوام کی عزت و تکریم یقینی ہوگی۔ تمام وزارتیں امدادی رقوم میں غریب عوام کی شمولیت کو وسیع کریں۔ پچھلے سال سے بہتر اور مؤثر ادائیگی کے لیے جامع حکمت عملی جلد پیش کی جائے۔ مؤثر نگرانی کے لیے ڈیجیٹل ڈیش بورڈ اور منظم مانیٹرنگ کا نظام قائم کیا جائے۔ انسانی اسمگلرز کسی رعایت کے مستحق نہیں، پاکستان کے نام پر ہر فائن نہیں دیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اسلام آباد میں اہم اجلاس۔ ایف آئی اے امیگریشن ونگ کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ۔ انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے اقدامات پر غور۔ پیشہ ور بیکاری مافیا اور سرپرستوں کے خلاف مؤثر کریک ڈاؤن کا حکم۔ امیگریشن مافیا کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کے احکامات۔ محسن نقوی کی ایف آئی اے کو امیگریشن قوانین پر مؤثر عمل درآمد کی ہدایت۔ ایئرپورٹس پر امیگریشن چیکنگ نظام مزید مؤثر بنانے کا حکم۔ سفری دستاویزات کی سخت اسکریننگ یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی۔ درخت کٹائی میں ملوث افسر اب گرفتار ہوگا۔ درختوں کی کٹائی پر ایس ایچ او کو بلا کر پرچہ درج کرایا گا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم کے اسموگ اور ماحولیاتی آلودگی کے تدارک کے خلاف درخواستوں پر ریمارکس کہا کہ متعدد بار درختوں کی کٹائی سے روکنے کا حکم دیا۔ درختوں کی کٹائی کے معاملے کی تحقیقات کرائی جائیں۔ پی ایچ اے کو پارکس کے حوالے سے پالیسی بنانے کا کہا۔ ناصر باغ کا معاملہ عدالت کی نگرانی میں مکمل ہوگا۔ ناصر باغ کے بارے میں کیا رپورٹ ہے، وکیل نے جواب دیا۔ ناصر باغ میں پارکنگ پلازا کی آئینی حیثیت چیلنج کر دی گئی۔ عدالت نے کہا کہ ماہرین آئندہ سبات پر ناصر باغ کے بارے میں رپورٹ پیش کریں۔ گلی محلوں میں واشنگ اسٹیشنز پر کارروائی کیوں نہیں کی جا رہی؟ لاہور کے ارد گرد صنعتی یونٹس کے لیے محکمہ ماحولیات کا ایک یونٹ ہونا چاہیے۔ پنجاب حکومت کا پراپرٹی آنرشپ ایکٹ میں ترمیم کرنے کا فیصلہ۔ نئی مجوزہ ترامیم میں ریٹائرڈ سیشن ججز پر مشتمل ٹرائیبیونلز ختم کیے جائیں گے۔ مجوزہ ترمیم کے مطابق حاضر سروس ایڈیشنل سیشن ججز کو بطور ٹرائیبیونل مقرر کر کے خدمات لی جائیں گی۔ قبضے سے متعلق ضلعی کمیٹیوں کو درخواستیں بھیجنے کا اختیار سول جج کو دیا جائے گا۔ کمیٹی براہ راست زیر التوا کیسز پر فیصلہ نہیں کر سکے گی۔ ٹرائیبیونل کے عبوری فیصلے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا جا سکے گا۔ دونوں میں سے ایک فریق خود سول عدالت میں کیس کمیٹی کے پاس بھیجنے کی درخواست کرے گا۔ سول جج کے پاس اختیار ہوگا کہ وہ کیس کو کمیٹی کے پاس بھیجے یا نہیں۔ پاکستان کے مختلف شہر زلزلے سے لرز اٹھے۔ اسلام آباد، راولپنڈی، ایبٹ آباد، گلگت، اسکردو، مری اور گلیات میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ مظفر آباد اور باغ سمیت آزاد کشمیر کے کئی علاقوں میں بھی زلزلے۔ ریکٹر اسکیل پر شدت 5.8 اور گہرائی 159 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مرکز تاجکستان چین کی سرحد تھی۔ تاجکستان اور سنکیانگ میں زلزلے کی شدت 6.1 ریکارڈ کی گئی۔ 2018 میں ایک تبدیلی لائی گئی، اس تبدیلی نے تمام پالیسیاں ترک کر دیں۔ پی ٹی آئی دور میں پاکستان بحرانوں کا شکار رہا۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا کہ پی ٹی آئی دور میں سی پیک کو بند کر دیا گیا۔ 2022 میں ہم اندرونی طور پر ڈیفالٹ کر چکے تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مشکل اور دلیرانہ فیصلے کیے۔ دنیا پاکستان کے اکنامک ٹرن اراؤنڈ کی معترف ہے۔ ہماری مسلح افواج نے فیلڈ مارشل کی قیادت میں دشمن کو تاریخی جواب دیا۔ مسلح افواج نے بھارت کو دن میں تارے دکھا دیے۔ بھارت سمجھتا تھا کہ وہ خطے کا تھانے دار ہے۔ بھارت کو جنگ میں شکست دے کر بتایا پاکستان میں بہترین دفاع کی صلاحیت ہے۔ امریکی صدر نے بار بار افواج پاکستان اور پاک فضائیہ کی تعریف کی۔ سرکاری اسپتالوں کے لیے نئی اور جدید میڈیسن کی لسٹ مرتب اور کمیٹی بنانے کا حکم۔ پنجاب میں اب ہر ڈاکٹر نرس کا علاج پر فوکس ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت صحت کے شعبے کا اجلاس۔ دوران ڈیوٹی موبائل استعمال پر پابندی پر اتفاق۔ اسپتالوں کے سیکیورٹی گارڈ، وارڈ بوائے، نرسز، فارمیسی اسٹاف کو باڈی کیم لگانے کا فیصلہ۔ مریم نواز نے کہا کہ صوبے میں ادویات کے لیے 80 ارب روپے مختص کیے گئے۔ اب عوام کے پیسے اور وقت ضائع نہیں ہوں گے۔ نااہل اور کام چوروں کو گھر جانا ہوگا۔ وفاقی حکومت کا سوئٹزرلینڈ کی دواساز کمپنی روش کے ساتھ معاہدہ لوگوں کو بیماریوں سے محفوظ کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے کہا عوام کو معیاری علاج معالجے کی سہولت کی فراہمی ترجیح ہے۔ ہماری تمام تر توجہ ہیلتھ کیئر نظام کو مضبوط بنانا ہے۔ پیمز اسپتال میں کینسر کے مریضوں کے لیے مفت ادویات کی فراہمی ہوگی۔ 1 کروڑ روپے مالیت کی ادویات کا پیکیج
मरीजों को फराहम किया जाएगा। पहले मरहले में 745 मरीजों को मुफ्त अद्वियात फराहम होंगी। पाकिस्तान सुपर लीग की नई इनिंग्स का आगाज, 2 नई टीमों हैदराबाद और सियालकोट की एंट्री। PSL 11 में टीमों की तादाद 6 से 8 हो गई। 7वीं टीम FKS ने 175 करोड़ रुपए में खरीदी, नाम हैदराबाद होगा। 8वीं टीम ओजी डेवलपर्स ने 185 करोड़ रुपए में खरीदी, नाम सियालकोट होगा। नई टीमों की नीलामी के लिए 10 कंपनीज ने क्वालिफाई किया था। PSL सीजन 11 के लिए 2 नई टीमों की नीलामी की शानदार तकरीब। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने नीलामी का आगाज किया। स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम ने ऑक्शन कराई। मोहसिन नकवी ने दोनों नई टीमों के मालिकान को मुबारकबाद दी। तमाम कंपनीज का बोली में हिस्सा लेने पर शुक्रिया अदा किया। तकरीब से खिताब में कहा कि आपको PCB की तरफ से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराता हूँ। PSL और क्रिकेट मजबूत करेंगे। फ्रेंचाइज ओनर्स ने PSL पर एतमाद का इजहार किया। नए मालिकान का एतमाद PSL की तरक्की में अहम होगा। PSL में 2 नई टीमों की शमूलियत तारीखी लम्हा है। ये सिर्फ PSL नहीं बल्कि पाकिस्तान की कामयाबी है। क्रिकेट से लगाव और मोहब्बत करने वालों की जीत हुई। हैदराबाद और सियालकोट के अवाम को भी मुबारकबाद देता हूँ। ये बिडिंग PIA की निजकारी का तसलसल है। वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और कौम को खुशी है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की नए फ्रेंचाइज मालिकान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बहुत फख्र महसूस कर रहा हूँ। शफाफ तरीके से टीमों की नीलामी हुई। बिडिंग से PCB को 36 अरब रुपए मिलेंगे। आने वाला सरमाया पाकिस्तान में खेल पर खर्च होगा। अमेरिका से 5 कंपनियां बिडिंग में हिस्सा ले रही थीं। अमेरिकी नाज़िम उल उमूर नकली बेकर ने कहा, पाकिस्तान में अमेरिकी नुमाइंदे के तौर पर तकरीब में शिरकत करके बहुत खुशी हुई। अमेरिकी कंपनीज पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रही हैं। दोनों ममालिक के माबैन तजारती ताल्लुकात बेहतर होंगे। ऑस्ट्रेलिया के हमजा मजीद को भी मुबारकबाद देती हूँ। पाकिस्तान की सालमियत सबसे अहम है। वेनेजुएला, यूरोप, गजा और कश्मीर में देखें तो अंदाज़ा होगा पाकिस्तान की सालमियत बहुत ज़रूरी है। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि दुनिया में जो तब्दीलियाँ आ रही हैं उनको भी मद्देनज़र रखा जाए। बानी PTI का हमारे दरमियान मौजूद होना पाकिस्तान की ज़रूरत है। बानी PTI हमें आगे बढ़ने की हिकमत अमली दे सकते हैं। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का वफ़द हमारे पास आया, इस पर शुक्रगुजार हैं। मुश्किल वक्त में साथ खड़े होने वाले वर्कर्स को खराज तहसीन पेश करते हैं। अमेरिका में इमिग्रेशन अहलकारों की फायरिंग का एक और वाकया। पोर्टलैंड में फेडरल एजेंट्स ने 2 अफराद को गोली मारकर जख्मी कर दिया। मकामी पुलिस के मुताबिक दोनों जख्मी अस्पताल में जेर इलाज है। मेयर पोर्टलैंड की ICE एजेंट्स को तमाम सरगर्मियां बंद करने की हिदायत, शहरियों से पुरअमन रहने की अपील भी कर दी। अमरीकी सेनेट ने वेनेजुएला में फौजी इक़दामात के खिलाफ करारदाद बहस के लिए मंजूर कर ली। खबर एजेंसी के मुताबिक 52 अरकान ने करारदाद के हक, 47 ने मुखालफत में वोट दिया। वेनेजुएला में मजीद फौजी इक़दामात के लिए सदर को कांग्रेस की इजाज़त दरकार होगी। कुछ रिपब्लिकन सेनेटर्स ने भी करारदाद के हक में वोट दिया। सदर ट्रंप की रिपब्लिकन सेनेटर्स पर कड़ी तनकीद। कहा कि अमरीकी दिफा से रोकने के लिए इख्तियारात छीनने वाले शर्म करें। डेमोक्रेट्स का साथ देने वाले रिपब्लिकन्स को दोबारा मुंतखब नहीं होना चाहिए। अमरीकी सदर ने एक बार फिर ईरान को धमकी दे दी। नाइजीरिया में भी हमलों की वार्निंग। कहा, दुनिया भर के ममालिक पर अमरीकी फौजी हमले या जारहियत का हुक्म देने का मुकम्मल इख्तियार रखता हूँ। नाइजीरिया में मसीहियों को कत्ल किया गया तो मजीद हमले करेंगे। ताइवान पर चीन की कार्रवाई से खुश नहीं होंगे। उम्मीद है चीन ताइवान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा। अमरीका रूस जौहरी मुआहदा खत्म होता है तो होने दें। मुस्तकबिल के मुआहदे में चीन को शामिल किया जाना चाहिए। ग्रीनलैंड पर हमले की सूरत में डेनमार्क की अमेरिका को वार्निंग। डेनिश वजीर दिफा का कहना है कि हमला हुआ तो गोली पहले मारेंगे, सवाल बाद में पूछेंगे। मुसल्लह अफवाज अहकामात का इंतजार किए बगैर फौरी जवाब देंगी। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अंदर एक खुद मुख्तार इलाका है। उधर साबिक जर्मन सिफारतकार एडमंड बर्ट्स का ट्रंप को ग्रीनलैंड पर हमले से बाज रहने का मशवरा। कहा कि अमरीकी कार्रवाइयों से रूस और अमरीका में कशीदगी बढ़ने का खदशा है। अमरीका ग्रीनलैंड पर हमला करता है तो सूरत हाल शिद्दत इख्तियार कर जाएगी। अमरीकी कार्रवाई नेटो में तनाज़ा पैदा कर सकती है। ट्रंप इंतजामिया की ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बनाने के लिए नई प्लानिंग। अमेरिका के साथ इल्हाक की हिमायत करने वाले ग्रीनलैंड के शहरियों को 10,000 से $1 लाख तक देने की पुरकशिश ऑफर दे दी। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं यूरोपीय ममालिक को ग्रीनलैंड के मामले पर सदर ट्रंप को संजीदा लेना चाहिए। यूरोप अमेरिकी सदर का मौक़िफ़ नजरअंदाज न करे।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दौरा सिंध फ्लाइट लेट होने के बाद इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मौजूद सोहेल आफरीदी इंसाफ हाउस में पार्टी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आला पीर के रोज़ वज़ीर आला सिंध से भी मुलाकात करेंगे। सोहेल आफरीदी कल रैली की सूरत में हैदराबाद जाएंगे। सीनियर वकीला और ताजरों से मुलाकात करेंगे। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से खिताब भी शेड्यूल। सोमालीलैंड में इसराइली ओहदेदार के दौरे पर पाकिस्तान समेत 24 इस्लामी ममालिक का सख्त रद्द अमल। पाकिस्तान समेत 24 ममालिक और OIC के इसराइली इक़दाम की शदीद मजम्मत। इसराइल सोमालीलैंड को तस्लीम करने का फैसला वापस ले सोमालिया के सिफारती और कानूनी इक़दामात की हिमायत जारी रखने का ऐलान। मुश्तरका बयान में कहा, इसराइली दौरा सोमालिया की खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी है। सोमालिया की वहदत और इलाकाई सालमियत की मुकम्मल हिमायत का अयादा करते हैं। अलहदगी पसंद एजेंट्स की हौसला अफजाई नाकाबिल कबूल है। बैनुल अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की पासदारी पर जोर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से बांग्लादेशी एयर चीफ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल और दो तरफ़ा दिफाई व अस्करी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के इम्कानात पर तबादला ख्याल। फ़रीक़ैन ने पाक बांग्लादेश मुसल्लह अफ़वाज के माबैन पेशा वराना ताउन, तरबियती तबादलों और दिफाई ताल्लुकात को फ़रोग़ देने की अहमियत पर जोर दिया। दोनों बरादर ममालिक के दरमियान देरीना और मजबूत ताल्लुकात का इयादा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बांग्लादेश के साथ देरपा दिफाई ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इयादा किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक फ़ौज की खिदमत की तारीफ़ की। फील्ड मार्शल ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को मीनार पाकिस्तान का मॉडल बतौर तोहफ़ा पेश किया। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ से भी बांग्लादेशी एयर चीफ की मुलाकात। बाहमी पेशा वराना दिलचस्पी के उमूर, बदलते हुए इलाकाई सिक्योरिटी मंजरनामे पर तबादला ख्याल। पाक सऊदी दिफाई ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर से दुका सऊदी अरब का दौरा। सऊदी फ़ज़ाइया के कमांडर और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकातें। इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और मुस्तक़बिल के दिफाई इश्तराक पर तबादला ख्याल। मुश्तरका तरबियत, ऑपरेशनल ताउन और पेशा वराना तजरीबात के तबादले पर जोर। पाकिस्तान सऊदी दिफाई मुआहदा बाहमी एतमाद और बरादराना ताल्लुकात की अलामत करार। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा गया। दिफा और एविएशन शोबों में ताउन को वुसअत देने के अज़्म का अयादा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सागदार का तुर्क वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता। दो तरफ़ा रवाबित और बदलती हुई आलमी सूरत हाल का जायज़ा लिया। 10 जनवरी को OIC वज़राए ख़ारजा काउंसिल के इजलास पर गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक फ़रीक़ैन ने जद्दा में होने वाले गैर मामूली इजलास के बरवक्त इनेक़ाद का खैर मकदम किया। इसहाक डार का बांग्लादेशी मुशीर ख़ारजा से भी राबता। दो तरफ़ा उमूर और हालिया इलाकाई पेशरफ्त का जायज़ा लिया। OIC वज़राए ख़ारजा काउंसिल के इजलास पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं ने गैर मामूली इजलास के बरवक्त इनेक़ाद को सराहा। फितना किसी भी रूप में हो, बचना नहीं चाहिए। पंजाब की सरजमीन हर जालिम और माफिया के लिए तंग कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि मजहबी मुनाफरत तकसीम को रोकना उलमा कराम की जिम्मेदारी है। कई बार मजहबी मुनाफरत फैलाने वालों के खिलाफ सख्त इक़दाम करना पड़े। कुछ लोगों ने एहतजाज के नाम पर रियासत को यरगमाल बनाया। ये लोग जलाओ घिराओ सड़कें बंद करने को मजहब का नाम देते हैं। इन लोगों ने अमलाक को नुकसान पहुंचाया, कानून के मुहाफिजों को शहीद किया गया। बेगुनाह खून बहाना, जिंदगी तंग करना फितना नहीं तो और क्या है। उलमा कराम के लिए 25,000 छोटा सा नजराना और तोहफा है। शिमाली और जनूबी गजा में इसराइली फ़ौज की बमबारी। 14 साला बच्ची समेत 4 अफराद शहीद। 10 अक्टूबर को सीज़ फायर के बाद से 400 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। इसराइल का आखिरी यरगमाली की बाक़ियात देने का मुतालबा। कहा कि बाक़ियात मिलने तक रफ़ा क्रॉसिंग नहीं खुलेगी।